So what was the problem? The problem is whenever you will just try to write down some Java, otherwise whenever you want to just insert the actually some Java data into database, so हम लोगों ने जो query यहाँ पे एक बार like जो query लिखा था insert into employee, what is that employee? That's my table name. Values, then actually हमने यहाँ जो name, age and salary लिखा, this name, age and salary are nothing but in Java variables. Okay, ये सब के सब Java के variables है. So my question was like will my database software supports my Java data type? So that's not possible. Okay, वो support नहीं करता because यहाँ हमारे पास string है. So according to database it is varchar. According to Java, if it is integer and float, according to DB that is integer and decimal. So it will not support Java database. Sorry, Java data type. Database will not support Java data type. Then what to do, guys? So हम लोग पे converter चाहिए. That converter is nothing but a JDBC driver. So now what is the next step? Our next step is we have to write down the query in Java, and वो query हम किसको forward करेंगे? We have to forward this query to our JDBC driver. Now what the JDBC driver will do? JDBC driver का कामकाज ये जो name है, what is the data type of this name? What is the data type of this name? It is string. उसको वो varchar में convert कर देगा. What is the data type of this in age? That is integer. उसको int में convert कर देगा as per SQL, as per database. What about the salary? It is float, तो उसको decimal में convert कर देगा and will forward this query to database. Now easily that query will execute over there and you will get the answer. Is it clear to everyone? So what is the requirement of this JDBC driver? JDBC driver, it's nothing but a mapper. Right now, सिर्फ इतना सा समझो, JDBC driver, it's nothing but a mapper. It's pretty simple. JDBC driver is a mapper only. That's the thing. So now, what is the requirement, sir? अब ये JDBC driver अगर mapper है, so guys, now this is the question. अगर वो mapper है, so ये database to database different होगा या same mapper में Oracle के साथ connectivity के लिए use कर सकता हूँ, Postgres SQL के साथ connectivity करने के लिए use कर सकता हूँ, या MS Access के साथ connectivity करने के लिए use कर सकता हूँ, और मुझे different mapper चाहिए. Yes, guys, मुझे different mapper चाहिए या एक ही mapper सब जगह चलेगा? Yes, guys. My question is, I want to connect my Java with MySQL. I want to connect the Java with Oracle. I want to connect the Java with Postgres SQL. I want to connect Java with actually MS Access. So in short, I have 4 to 5 different types of database softwares. So I want to connect my Java with either of the software. Okay, with either of the software. So what should I do? मुझे actually different mapper की जरूरत है और same mapper I can use. मैं same mapper use कर सकता हूँ. Guys, अगर same mapper use किया, so that's not allowed. Reason is like MS Access में जाओगे ना तो आपके पास varchar नहीं है, वहाँ पे text num का data type है. Okay, वहाँ पे integer नहीं है, वहाँ पे number है actually data type की जगह पे. So in short, I mean to say कि ये data type actually software to software different होता है. ये data type actually software to software different होता है. So अगर आप DB change करो, you have to change your mapper. In short, you have to change the driver. So अब ये ड्राइवर कौन प्रोवाइड करेगा भाई? So ड्राइवर डेटाबेस पर्टिकुलर डेटाबेस वेंडर प्रोवाइड करने वाला है. मतलब अगर आप MySQL की बात करें, MySQL के साथ कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, then you require MySQL driver, JDBC MySQL driver you require. अगर आप Oracle की बात करें तो JDBC Oracle driver चाहिए. अगर आप MS Access की बात करें then you require ODBC JDBC driver. That is ODBC why? Because MS Access is open database. The open database driver we require. JDBC open database. So ODBC JDBC, yeah, you can say JDBC ODBC. Open database connectivity driver we require. In short, this driver is database dependent and that is provided by particular DB vendor. Okay. So now let me download. Firstly, मैं इसको MySQL के साथ connect करना चाहता हूँ. So let me just download JDBC driver for MySQL. So for that, what you have to write down? You have to just write down JDBC MySQL driver. Okay, JDBC MySQL driver download. I just write down like JDBC MySQL driver download. Okay, version doesn't matter. So इसमें java2s.com करके वेबसाइट है, java2s.com, otherwise jardownload.com. ये सब में आपको डायरेक्टली ड्राइवर मिलेगा. So this is the driver. Okay, you can just download it from here. आपको यहाँ से भी ड्राइवर मिल जाएगा. You can just download this one. ये काफी लेटेस्ट वर्जन है 8.0.23. Okay, 8.0.23. I will download this one also and I will download this one also.
बिकॉज मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि ड्राइवर के लिए आप लोगों को कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं है. So this is my driver. Let I copy this one and paste on a desktop. So मेरे पास specific DSA करके फोल्डर है, उसके अंदर JDBC नाम का फोल्डर बना लेते हैं. Like I just paste it over here. And इसको हम लोग यहाँ पे extract कर देते हैं. Okay, so that was extracted. Now एक ड्राइवर हम लोग को यहाँ मिला था. Let I just open this also. Paste it here. And इसको भी extract करते हैं. Okay, so I have two drivers. Okay, इस दोनों को डिलीट करता हूँ. So मेरे पास दोनों ड्राइवर है. मैंने दो अलग अलग वर्जन लिए. जस्ट चेक, जार फाइल के अंदर मेरे पास जो ड्राइवर था, it's 8.0.23. It is 8.0.23 and this driver is actually 5.1.15. Sorry, 5.1.5. So मैंने दो डाउनलोड क्यों किए? Because I want to just explain one thing. अब मैं इस ड्राइवर को एक्चुअली ओपन कर रहा हूँ. How to open that? तो मैं वन सेकंड मैंने उसके ऊपर राइट क्लिक की और उसको वन सेकंड में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ. पहले मैंने जिप फाइल डाउनलोड की थी. अब ये जार फाइल है. जस्ट चेक, इट इज नथिंग बट ए जार फाइल, executable jar file it is. Let us just zoom in that. So that is executable jar file it is. I hope this is clear. Okay, तो इसके लिए मैं just right click करूंगा इसके ऊपर. jar file you can consider it is a rar file. Okay, jar file को आप rar file मान सकते हो. rar और jar का फर्क like it's Java based and एक normal Windows based. तो मैंने इसको extract किया guys. मैंने इस jar file को extract किया, so I will have a folder com.mysql jdbc something. Inside that I have actually com folder. एक बार मैं इसको नोट डाउन करते जाता हूँ. Okay, we have notepad is open actually. So इसको मैं एक बार ओपन कर देता हूँ. पहले मेरे पास फोल्डर था com के अंदर मेरे पास फोल्डर है MySQL के अंदर मेरे पास फोल्डर है JDBC. ओके, एक बार रिपीट कर लेते हैं. सो फर्स्ट फोल्डर इज, मैंने पहले फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया, जो भी मैंने डाउनलोड किया था उसको एक्सट्रैक्ट किया. नाउ इनसाइड दैट आई हैव अ फर्स्ट फोल्डर दैट इज com. Inside the com I have a MySQL, inside that I have a JDBC. Just open that. Now just search for the driver. So driver is the name of the class because after all that's actually Java. Okay, भले MySQL से आपने लिया बट उसको काम क्या करना था इस ड्राइवर को? जावा के डेटा टाइप को MySQL में कन्वर्ट करना था. So it must be a Java code, तो ही आप उसको जावा के साथ कनेक्ट कर सकते हो. जस्ट गो थ्रू दिस डायग्राम. मुझे ये JDBC ड्राइवर को जावा के साथ कनेक्ट करना है. सो कनेक्ट कैसे करोगे? अगर वो जावा का कोड है तो ही कनेक्टिविटी होगी. ओके, सो हमने क्या किया, उस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया, फोल्डर के अंदर फोल्डर जाके चेक किया. लेट वन सेकंड वी ओपन दैट. पहले com के अंदर MySQL के अंदर JDBC में हमने ड्राइवर सर्च किया. ओह, हियर वी हैव अ ड्राइवर. हमारे पास ड्राइवर नाम का एक क्लास है. ओके, सो गाइस इसके अंदर ड्राइवर था. सो व्हाट इज दैट? दैट इज द लोकेशन ऑफ योर ड्राइवर. दैट इज द लोकेशन ऑफ द ड्राइवर. सो अगर मुझे अपने जावा को JDBC ड्राइवर के साथ कनेक्ट करना, अदरवाइज आई कैन से JDBC ड्राइवर को जावा में लोड करना है गाइस, तो आपको ड्राइवर का पूरा ये लोकेशन इस तरीके से लिखना पड़ेगा. लेट आई जस्ट राइट डाउन ओवर हियर. मैं यहाँ पे लोड ड्राइवर. ओके, सो व्हाट इज द लोकेशन? मैं ड्राइवर का पाथ क्या है मेरा? सो दिस इज द पाथ. मैं यहाँ पे एक्चुअली ये एरो नहीं लिख सकता, उसकी जगह मुझे डॉट लिखना है. क्यों डॉट? जैसे गाइस आप लोग java.util क्यों लिखते हो? बिकॉज जावा नाम के फोल्डर में util नाम का फोल्डर है. सो फोल्डर के अंदर फोल्डर है, दैट इज एक्चुअली नोन एज पैकेज. तो यहाँ मेरे पास फोल्डर के अंदर फोल्डर था, दैट मींस व्हाट? इट्स नथिंग बट अ पैकेज. सो com.mysql.jdbc.driver, com.mysql.jdbc.driver. ये मगअप करना है? नो गाइस, यू हैव नॉट टू मगअप दिस. मगअप नहीं करना है. हम लोगों ने क्या किया, जस्ट हमने ड्राइवर डाउनलोड किया, इस जार फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसके अंदर देखा ओके com, inside that MySQL, inside that JDBC, inside that driver folder is there. तो हमने लोकेशन सर्च करके यहाँ पे पुट किया. दैट्स दैट. उसका लोकेशन यहाँ पे लिखा. दैट इज द फर्स्ट थिंग. अब मैं अपडेटेड ड्राइवर के साथ सेम ऑपरेशन करना चाहता हूँ. अपडेटेड ड्राइवर मेरा जार फाइल्स में था. लेट आई जस्ट एक्सट्रैक्ट दिस MySQL कनेक्टर. प्रोसेस, आपको प्रोसीजर समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में गाइस? मैं मगअप नहीं कराना चाहता ड्राइवर का लोकेशन. हम लोग सर्च अपने हिसाब से पूरा इसको एक्सट्रैक्ट करके लिख रहे हैं. Okay, ये काफी बड़ा ड्राइवर है, देखो काफी टाइम लगा उसको एक्सट्रैक्ट होने. लेट वी ओपन दिस. सो once again we have a com folder, inside that MySQL folder, inside that JDBC folder. oh, JDBC में ड्राइवर है बट काफी कम चीजें हैं. JDBC में हमारे पास ड्राइवर है बट काफी कम चीजें हमारे पास अवेलेबल. सो आई विल नॉट फॉलो दिस JDBC folder. I will just go to this CJ folder. Inside that JDBC folder is there. Oh, lots of things are there. Now search for the driver. So driver is available. मैं एक बार फोल्डर्स के नाम लिखना चाहूंगा, तो पहले com,
inside that MySQL. So let me just mention that. So अब updated driver में मेरे पास com MySQL inside that CJ, com MySQL inside that CJ. Inside that CJ we have JDBC. Inside that CJ we have a JDBC. Inside that we have a driver. Inside that we have a driver. So this will be the location. Okay, so अगर आप updated driver पे काम कर रहे हो तो आप do आपके पास एक चीज एक्स्ट्रा है. ओके, आपको यहाँ पे CJ करके करना पड़ेगा. सो अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे ना, अगर आप ऑनलाइन जाओगे ना, तो काफी सारी जगहों पे आपको ये ड्राइवर यूज करते हैं. एंड इन सम प्लेसेस यू हैव टू गो विद दिस. ओके, तो गूगल करोगे तो गाइस आपको दोनों ड्राइवर के लोकेशन मिलेंगे. तो काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा सही प्रोग्राम है. ओके, सो गाइस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक द ड्राइवर वर्जन. आपने कौन सा ड्राइवर डाउनलोड किया है. आपने जो भी ड्राइवर डाउनलोड किया, you have to just after, like on the base of your driver version, you have to just write down the location of this driver class. What is this? It's nothing but a path. It is nothing but a driver path, nothing else, nothing special. मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है, but obvious GTU point of view से मगअप करना पड़ेगा. Why? Because वहां आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते रिटर्न पेपर में. Okay, so मैं एक बार प्रोसीजर जल्दी से रिपीट कर देता हूँ. What we did, I want to connect my Java with the database. So directly connection क्यों नहीं किया? Why we have to include this JDBC driver? Because we had a problem. What is the problem? Consider I have actually three different things. Consider I have a name of the employee, I have an age, and I have salary. और ये तीन चीजें मुझे डेटाबेस में इंसर्ट करनी थी. मैंने अच्छे से क्वेरी भी लिख दी. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय एंड वैल्यूज करके मैंने वेरिएबल्स भी लिख दिए, नेम, एज एंड सैलरी. बट व्हाट हैपेंड, जब हमने क्वेरी फायर करने की ट्राई की तब JDBC ने बोला, ओ भाई व्हाट इज स्ट्रिंग. आई हैव नो आइडिया अबाउट द स्ट्रिंग, बिकॉज़ जावा के पास स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट टाइप का डेटा था. तो डेटाबेस ने ना बोल दिया, मैं स्ट्रिंग नहीं समझता भाई. आई कैन अंडरस्टैंड ओनली varchar, इंटीजर, डेसिमल, नंबर टाइप ऑफ डेटा टाइप. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर डेटा टाइप. So what is our requirement? We required a data type converter, we required data type mapper in between Java and MySQL, or in between Java and Oracle, in between Java and MS Access, whatever database कुछ भी हो. तो हमको ऐसा कुछ चाहिए. Okay, so we required this type of thing, guys. So what to do? अगर ऐसा हम लोग को कुछ चाहिए, then what is our thing? Like हमको क्या करना चाहिए? तो हम लोग हर एक टाइम मैन्युअली तो हम लोग मैपिंग नहीं करेंगे string to varchar, integer to integer, float to decimal. Then what you can do? हम लोग एक सॉफ्टवेयर प्रीडिफाइंड ले लेते हैं. What is the database JDBC driver? It is nothing but a software. It is nothing but a software. तो पहले हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए ट्राई किया. So for that we just search this JDBC driver, and for that we just try down JDBC MySQL driver down. ये मेंशन कर देता हूं मैं. ओके, यहाँ पे आपको ये डाउनलोड JDBC ड्राइवर. ओके, सो हमने डाउनलोड किया. बट डाउनलोड करने गए तो हम लोग को दो डिफरेंट लिंक मिली थी. हमने दो लिंक ओपन की थी. दिस लिंक्स आर एक्चुअली java2h.com and jardownload.com. So let me just copy this link also. And ये URL भी मैं गाइस आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा. या फाइन, दो अलग अलग चीज थी. एंड जब हमने इसको सर्च किया, देखा जहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे अलग अलग वेबसाइट से. सो इस वेबसाइट पे हम लोग को पता चला, वन मिनट. ओके, हम लोग को ये चीज चाहिए सर. ओके, सो हमने यहाँ से जब कनेक्टेड ड्राइवर डाउनलोड किया, एट दैट टाइम वी रियलाइज, ओह दिस इज नथिंग बट 8.0.23. द वर्जन इज 8.0.23 and here we got the version 5.1.5. so we have two different versions actually. so which version we have to use? तो हमने दोनों डाउनलोड करने के बाद गाइस हम लोगों ने क्या किया था, we just create one folder. Where is that? Yeah, here it is. Not this one. Yeah, here it is. so हमने एक फोल्डर क्रिएट किया Pacific करके. उसके अंदर हमने JDBC नाम का फोल्डर रखा और दोनों जार फाइल हमने वन बाय वन यहाँ पे दोनों जार फाइल यहाँ पे कॉपी पेस्ट की. आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क, हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया बिकॉज़ दैट वाज अ जिप फाइल. एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक में से हम लोग को डायरेक्ट जार फाइल मिला था और एक में से हमारे पास फोल्डर था. सो दैट इज द ओल्डेस्ट वर्जन 5.1.5. वी जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट एंड हमने उसको वंस अगेन एक्सट्रैक्ट किया. एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने इसको ओपन किया. सो हियर इनसाइड दैट वी जस्ट फाउंड वन फोल्डर. द नेम ऑफ द फोल्डर इज com. इनसाइड दैट MySQL, इनसाइड दैट JDBC, इनसाइड दैट द ड्राइवर फाइल इज देयर. इट्स योर driver.class. तो मुझे ड्राइवर तक पहुंचना था. हमने उसका लोकेशन नोट डाउन किया. व्हाट इज द लोकेशन? com.mysql.jdbc driver. that was from the actually 5.1.5. okay, and उसी तरीके से दूसरे डेटा जो दूसरा डाउनलोड किया था हमने ड्राइवर, उसको भी हमने एक्सट्रैक्ट किया.
So that's actually 8.0.23. इसी jar file को भी extract किया. Inside that we just found com, MySQL, CJ, then JDBC. Inside that we have a driver file. Okay, so here we have, that is from 8.0. What is the file? Okay, 23. Okay, 8.0.23. So both the version are there. तो आप कोई सा भी version use करो, that's up to you. But driver का location अलग अलग जगह पे, ठीक है. So अगर आप latest version लेते हो guys, तो आपको CJ लिखना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ मेंशन कर देते हैं. सो काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बग आ रहा है, ड्राइवर नहीं मिल रहा, जबकि मेरा सब पाथ सब कुछ सही था. सो आई होप गाइस अब आप लोग को समझ में आ गया कि ड्राइवर लेने के टाइम आपको कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्टली वर्क नहीं करता. इज इट फाइन? किसी को कुछ प्रॉब्लम? सो आवर फर्स्ट टास्क इज आई वांट टू जस्ट लोड द ड्राइवर, बट बिफोर दैट लोड द ड्राइवर इन द सेंस आई मीन टू से मुझे जावा का JDBC ड्राइवर के साथ कनेक्टिविटी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर ड्राइवर. What is the location of the driver? So we have two different approach. Either अगर आप 5.1.5 use करते हो, so this is the location, and 8.0.23 use करते हो, then this is the location. Is it clear to everyone, guys? किसी को कोई डाउट? ये लोकेशन कहाँ से सर्च किया, फैच किया? मेहर सर, पिनल मैडम, फाइन. गाइस किसी और को कोई डाउट नहीं? सिर्फ दो नाम बोले हैं. किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो. उसने मीत, हमेशा. Okay, so let me continue. So driver मुझे मिल गया, but guys ऐसे ड्राइवर लिखने से थोड़ी कनेक्शन हो जाएगा. आप ऐसा लिखोगे कि जावा के अंदर आप एक वेरिएबल बना दो, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, नाम कुछ भी रखो, डजंट मैटर, ए रखो, ड्राइवर लिखो. बट ड्राइवर इसलिए लिखा कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाओ दिस इज फॉर ड्राइवर. हम लोग को एक्चुअली इन फ्यूचर प्रोग्राम में कंफ्यूजन ना हो. सो मैंने वेरिएबल तो बना दिया जिसमें लोकेशन भी लिख दिया. लोकेशन लिखने पे थोड़ी दोनों कनेक्ट हो जाते हैं. So connection कैसे करें? So guys, for the connection, we have a function. For the connection, we have one method, and that method name is forName. So method name is forName. What is the task of this forName? Used to load Java class in a given program. It is used to load Java class. Oh, where is the class? Oh, sir, this driver is a class name. This driver is a class name. So अगर ये ड्राइवर नाम के क्लास को आप अपने करंट प्रोग्राम में लोड करना चाहते हो, guys you have to use this forName function. So this forName is just used to load the Java class in a program. You have not to write down this one. आपको ऐसा नहीं लिखना. You have to just write down it is used to load JDBC driver. Okay, because हम लोग सिर्फ JDBC को फोकस करके चलेंगे. Because this is the general use. आप Android में भी जाओगे, at that time also guys you have to use this forName function you have to use. So वहाँ JDBC driver नहीं होगा. Are you getting my point? So what is the general use of this forName? It is just use another Java class in your current class. That is the thing. So program in the sense you can say that it's the Java class. एक class के अंदर दूसरा class load करना है guys, you have to just use forName function. So it's not a big deal. But right now in our case, which class you want to load? I want to load driver class, and this is the location of driver. So that's that, but I have a problem, and the problem is, sir, Java is pureOps. PureOps in the sense what? Everything is a part of another class. So ये forName का function कोई ना कोई class के अंदर बना है. Okay, so guys, now I have one question. Consider I have two functions. Void display. Inside my class, I have two functions. Let us say this function is public. Okay, and another function is void show. So I have one more problem, and that problem is one function is static, another one is not. So I want to access this display outside the class as well as show outside the class. मुझे display और show दोनों को call करना है. So will you please help me how to call them? Yes. I want to access this display and show outside the class. तो आप मुझे help करेंगे कैसे access करूँगा इनको? Yes, anyone? My question is, सर कंस्ट्रक्टर बना करके. सर that is not the right answer. कंस्ट्रक्टर बना के एक्सेस करना, लाइक चलो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइक क्लास फर्स्ट एंड दिस इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है सर. यस, फकर आलम सर, आपका लास्ट टाइम काफी अच्छे खान से आंसर आए थे. यस, एनीवन? सागर सर?
सर ऑब्जेक्ट बना के टेस्ट फाइन का। फाइन फाइन, टेस्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा मैं? आई होप कि इससे पहले जिसने आंसर दिया वो ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहे थे। ऑब्जेक्ट बनाने पे कंस्ट्रक्टर अपने आप रन हो जाता है, दैट्स फाइन। ओके यस सर, ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। देन t dot display, यस सर। fine, and what about this row? Using class name. So guys, अपने पास क्लास के अंदर दो टाइप के मेंबर होते हैं, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। तो स्टैटिक को क्लास से बाहर एक्सेस करना है, वी हैव टू ऑप्शन, यूजिंग क्लास नेम और यूजिंग ऑब्जेक्ट। आपके पास दोनों ऑप्शन है। इस शो के लिए आप टी भी लिख सकते हो। व्हाट इज द टी? इट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट, ओके, बिकॉज ये शो नाम का जो मेरा फंक्शन था वो कैसा है? इट इज स्टैटिक वन। तो स्टैटिक को एक्सेस करने के लिए दो ऑप्शन है, यूजिंग क्लास नेम, यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो क्लास के नाम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। व्हाट इज द क्लास नेम? ओके, क्लास का नाम कौन सा लिखना है? जिसका वो मेंबर है। ओके, कोई भी क्लास का नाम नहीं लिख सकते। तो शो को बाहर एक्सेस करना था, आई जस्ट राइट डाउन टेस्ट डॉट शो। व्हाट अबाउट नॉन स्टैटिक? कंपलसरी ऑब्जेक्ट। ओके, कंपलसरी ऑब्जेक्ट। गाइस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके फाइन, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम? हाउ टू एक्सेस स्टैटिक मेंबर आउटसाइड द क्लास, हाउ टू एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर आउटसाइड द क्लास। फाइन ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? यस मिहिर? नो सर, नहीं प्रॉब्लम है। फाइन फाइन, वेरी गुड। ओके, सो गाइस नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। मुझे ये पता चला व्हाट इज माय फर्स्ट टास्क। माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज जावा को जेडीबीसी ड्राइवर के साथ कनेक्ट करना। अदरवाइज जेडीबीसी ड्राइवर को जावा में लोड करना, दोनों का मीनिंग एक ही है। बट नाउ जेडीबीसी ड्राइवर का लोकेशन भी पता चल गया, पुराने वर्जन में क्या है, नए वर्जन में क्या है। बट नाउ उसको लोड करने के लिए फंक्शन का नाम भी पता चल गया, फॉर नेम। But now I have a question. So Java is a pure OOPS. That means what? That means everything will be inside the class. Java is a pure OOPS. Java is a pure OOPS. That means everything मतलब हर एक class variable is wrapped inside the class. Everything is inside the class. So ये for name भी कोई class के अंदर होगा, and class के अंदर है, then I have to ask one question. Oh, are you public? So it says, oh, I am public. Then I have to ask one more question. Are you static or non-static? Actually, for name is static also. So for name को access करना हो तो कैसे लिखूंगा मैं? I have to write down for name और इसके आगे मुझे लिखना है क्लास का नाम, because it is a static ना। यहाँ हमने अभी डिस्कस किया, स्टैटिक को एक्सेस दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट आई डू नॉट वांट टू राइट डाउन मोर टू स्टेटमेंट्स। लाइक मुझे उसका वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाने की टाइम पास नहीं करता है। डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है तो क्यों ये लाइन लिखे? ओके, सो मैं क्यों मेमोरी एलोकेशन करूं? तो डायरेक्टली मैं क्लास के नाम के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूं। But now my question is, in which class the forename is defined? So guys, forename is defined inside the class. Okay, so what is this class? It's the name of the class. So class नाम का कीवर्ड भी है, क्लास नाम का नाम भी है। तो अगर सी छोटू, अगर आपने सी छोटा लिखा, that is a keyword that is used to create a new class. But अगर आप कैपिटल लिखते हो तो predefined class है, and that is inside the java.language. जैसे कि हमने यहाँ स्कैनर यूज किया था। Scanner is defined inside Java, inside this java.util. Okay, scanner is defined inside this java.util. In a similar way, scanner, so in a similar way, class नाम का class यहाँ पे defined है java.language नाम के पैकेज। But अब ये हमको भरोसा नहीं आएगा, so let me just open the command prompt and let me type java.language and capital C. Let me check, class नाम का class है। Oh, we have lots of things actually. Yes, we have a class. Just check. छोटू सी मतलब it's a keyword used to declare, otherwise used to define a class, and this capital C says that, oh, this is a name of the class. This is the name of the class. Now I am worried. I want to just check, sir, forename is inside you or not? Forename is a member of class or not? So let me just check, guys. So where is the forename? There are lots of functions. किसी को forename दिखे तो बोलिएगा, शायद ऊपर ही गया। Oh yes, here we have. Just check this thing. So here we have function, and the name of the function is forename, and inside that we have to pass one argument. That is nothing but a name of the class with the location. जैसे कि मुझे driver को load करना है, we have to write down the whole thing. And what will be the return type? Just ignore that. मुझे उसके return type से कोई मतलब। I want to just check. Oh, is it public? Yeah, it is public. That means what? मैं उसको outside the class access कर सकता हूँ. Is it static? Yeah, it is static. That means what?
we need to access, we actually we have an option, either we can just use class name or object to access this function. Is it fine to everyone guys? So now it is a member of class. So यहाँ मुझे क्या लिखना है? Capital class and name of driver. So this is the example. Is it done? So अगर मुझे ड्राइवर लोड करना है तो क्या लिखना है? मुझे ड्राइवर लोड करना है तो क्या लिखना है? जस्ट इग्नोर दिस क्वेरीज, क्वेरी को इग्नोर करो, मुझे ये ड्राइवर लोड करना है, आइदर ऑफ द ड्राइवर. तो मुझे क्या लिखना है गाइस यहाँ पे? आई हैव टू जस्ट राइट डाउन कैपिटल सी क्लास डॉट फॉर नेम, इनसाइड दैट माय वेरिएबल नेम. इस वेरिएबल के अंदर पूरा लोकेशन लिखा हुआ है. ओके, दोनों में से कुछ भी आपकी मर्जी. सो लेट अस जस्ट राइट डाउन load one dot java. Okay, is it fine? किसी को कोई प्रॉब्लम? What we did, just ignore all this thing. मुझे इन सब में से किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ड्राइवर लोड करना था, मुझे सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर लोड करना, मुझे कोई डेटा नहीं चाहिए कहीं से. मुझे सिर्फ जावा का डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने का पहला स्टेप देखना था. एंड द फर्स्ट स्टेप इज प्लीज कनेक्ट योर जावा विद जेडीबीसी ड्राइवर. दैट्स दैट. So पहले मैंने JDBC ड्राइवर का लोकेशन सर्च किया, तो that is from 5.1.5, that is from actually 8.0.23. Either of the thing you can use guys. After that I want to load this driver, that means Java का JDBC के साथ connection करना था. For that we realize one thing, sir, for name is a method which is just used to load the JDBC driver. It is public, it is static, it is a member of java.language.class. So compulsory we have to use class.forName. In the bracket we can just pass this location. Is it fine to everyone guys? कोई problem किसी को यहाँ तक? Yes? Any problem? अगर problem नहीं है then I have a problem. I have a problem and the problem is mail. हम लोगों ने एक क्लास के लिए जो कैपिटल C वाला क्लास लिखा उसका लोकेशन क्या है? The location is java.language. So should I import the package? मुझे ऐसा लिखना चाहिए or not? स्कैनर के लिए जैसे util लिखते थे, in a similar way should I import this package or not? Yes, anyone? Guys, मुझे ये पैकेज इंपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब वो तो एरर आने पे पता चलेगा नहीं. Oh yes, फकरे says, guys आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, that's fine, क्योंकि चैट पढ़ना about impossible. So Alam sir says कि we have to import. So let me compile this. देखते हैं भाई ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा. So okay, one more question is, जो हम लास्ट सेशन में आपके एग्जाम से पहले डिस्कस कर चुके थे. My class name is test. क्लास का नाम टेस्ट है, फाइल का नाम load1 है. Will this work or not? फाइल का नाम, क्लास का नाम डिफरेंट है. Will this work or not? सर का काम करेगा ये. कब काम नहीं करेगा? जब आपका क्लास पब्लिक हो. मतलब अगर मेरा क्लास पब्लिक है, लेट आई जस्ट डिक्लेयर दिस वन एज अ पब्लिक. अगर आपका क्लास पब्लिक है, देन क्लास नेम एंड फाइल नेम मस्ट बी सेम. देन क्लास नेम एंड फाइल नेम मस्ट बी सेम. देखो ना क्या बोला है. ओ भाई, क्लास टेस्ट इज पब्लिक, सो शुड बी डिक्लेयर्ड इन test.java. Okay, so if your class is public, then class name and file name must be same. अगर मैं पब्लिक नहीं करता, then it will be fine. अब क्या बोल रहा है? अब एरर चेंज हो गई, ठीक है ना? That's fine. एरर चेंज हो गई. So now what is the error? The error is unreported exception, class not found. What is this? So let I just once again fire that command. Which command? java.language.class. तो जो क्लास वाली फाइल को ओपन करनी है जहां forName नाम का फंक्शन डिक्लेयर था. Just check guys, forName के पीछे एक और चीज लिखी है, that is class not found exception. Class not found exception. ये हम लोगों ने एक्चुअली TCP/IP के टाइम लर्न किया था. सॉकेट नाम के कंस्ट्रक्टर के पीछे ऐसा कुछ था, सॉकेट नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ओके, अदरवाइज सॉकेट एक्सेप्शन, अदरवाइज बाइंड एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे. सो अगर ऐसा कोई भी एक्सेप्शन पीछे लिखा है, देन वी हैव टू ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन इज either you can declare that exception, like what was the problem? Class not found exception. So either आप ऐसे declare कर दीजिए, otherwise compulsory you have to use try and catch. मैंने यहाँ declare कर दिया. Now let I compile. Okay, not this one. This is my file. Oh, that's fine. It's working. उसने work कर लिया. Okay, so that was the first option. अगर मान लो मैं यहाँ पे, मैं next time से ये discuss नहीं करूँगा, ठीक है? हम लोग ये TCP/IP में काफी time discuss कर चुके हैं. Now I do not want to declare that.
So another option is you have to write down your code, you have to bound your code, wrap your code in try and catch. You have to wrap your code in a try and catch. ठीक है? So class not found exception, and यहाँ पे आप मैन्युअली लिख सकते हो भाई डेटा नहीं मिला. कौन से क्लास की बात कर रहे थे? ड्राइवर. So driver not found. Okay, so now let us just compile this one also. Java C load 2.java. It works fine. But guys, अभी तो हमने compile किया, run कहाँ किया है? Okay, so I hope यहाँ तक clear है, कोई problem नहीं है. Why we just write down try and catch? Otherwise, why we just use the throws? जैसे इससे पहले वाली फाइल में throws लिखा था, throws something. Choice is yours. आप कुछ भी लिख सकते हो. ये मैन्युअली किया कि ड्राइवर नहीं मिला तो मुझे कोई टास्क करना था, और यहाँ पे अब नॉर्मली आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा without any notation, without any notification. Okay, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा and JVM will say, oh ड्राइवर नहीं मिला. बट आपको यहाँ कुछ काम करना है. ड्राइवर नहीं मिला तो दूसरा ड्राइवर लोड करो, वो नहीं मिला तो तीसरा ड्राइवर लोड करो, लाइक दैट. मुझे ऐसा करना था. ओके, आई हैव नो आइडिया कि आपके सिस्टम में पुराना ड्राइवर है या नया ड्राइवर. सो आई वांट टू जस्ट ट्राई टू लोड दिस वन. अगर वो नहीं मिला देन आई वांट टू जस्ट लोड दिस वन. अगर लाइक न्यू ड्राइवर इज नॉट अवेलेबल देन आई वांट टू लोड ओल्डर वन. ओके, सो दैट्स अप टू यू. तो आप ट्राई एंड कैच दोनों लिखिए. अगर आप ट्राई एंड कैच नहीं, मतलब अगर आप ट्राई कैच नहीं लिखते, कंप्यूटर के ऊपर छोड़ते हो, जेवीएम के ऊपर छोड़ते हो, तो बंद ही कर देगा आपका प्रोग्राम. ओके, चॉइस इज योर्स. नाउ लेट अस जस्ट रन दिस प्रोग्राम जावा टेस्ट. ओह, इट्स ए ड्राइवर नॉट फाउंड. अरे हमारे पास लेटेस्ट ड्राइवर है, बट सी स्टिल इट्स ए ड्राइवर नॉट फाउंड. तो आप पहले वाले को देख लेते हैं. इट आल्सो से ड्राइवर नॉट फाउंड. जस्ट चेक. उसने भी ऐसे ही बोला सर नहीं मिला. ड्राइवर नहीं मिल रहा भाई इसको. क्यों? यस, एनीवन? सो गाइस, आपने अपने कंप्यूटर में ड्राइवर कहां डाउनलोड करके रखा है अपने जावा को थोड़ी पता है. आपको सिर्फ उसका लोकेशन देना है उसको कि भाई ड्राइवर यहाँ पे है. सो आप बिफोर एग्जीक्यूशन आपको सिर्फ लिखना है set class path equals to dot semicolon. अब ड्राइवर कहाँ पे? कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज द ड्राइवर? Okay, let I just delete this one. ये जो extract किया था उसको मैं delete कर. So where is the driver? This is the driver location. Just copy the path. अब उसका path copy करें, paste it over here, and यहाँ paste करने के बाद ये jar फाइल का नाम भी लिख दीजिए. मैंने क्या किया? I just write out set class path. मैं एक बार mention कर देता हूँ. Okay, मैंने उसको पूरा location provide किया, and after this location हम लोगों को जार फाइल का भी नाम प्रोवाइड करना है. ओके, उसके बाद मतलब लाइक दैट इज एक्चुअली अप टू जार. तो यहाँ तक आपको पूरा लोकेशन प्रोवाइड करना है बाय जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन, लाइक बाय जस्ट यूजिंग दिस कीवर्ड सेट और कमांड सेट, एंड दिस क्लास पाथ इज नथिंग बट अ. ओके, तो ये करने के बाद आप अब प्रोग्राम को रन करें. ओह, अब एरर नहीं आ रही है. जस्ट चेक. अब मैं अपना पहला वाला प्रोग्राम भी रन करके देखता हूँ, मतलब सेकंड प्रोग्राम. इट वर्क्स फाइन. अब एरर नहीं आ रही. और हम लोगों ने इसमें कोई मैसेज नहीं दिया था. यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, ड्राइवर सक्सेसफुली लोडेड. ओके, नाउ लेट मी वंस अगेन कंपाइल द प्रोग्राम. चेंजेस किया तो कंपाइल करना पड़ेगा. और इट वर्क्स. ड्राइवर लोडेड. ट्राई फुल्ली एग्जीक्यूटेड. ट्राई फुल्ली एग्जीक्यूट. दैट मींस व्हाट? आपको लोकेशन देना मैंडेटरी. दिस इज मैंडेटरी. ओके, उसको पता नहीं है भाई कहाँ पे. सो इट जस्ट जनरेटेड बग. सो ये हम लोग स्टेप्स में लिख लेंगे. So that's that. Provide driver information. Okay, अगर आप ये सेम चीज लाइक नेटबिन्स या इक्लिप्स में करते हो तो वहां पे ड्राइवर कॉपी पेस्ट करके आपके प्रोजेक्ट में पुट करने पड़ते हैं. ओके, और कमांड प्रॉम्प्ट से करते हो तो वो भी हम एक बार प्रैक्टिकल देखेंगे. अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से करते हो तो वहां पे सेट क्लास पाथ करके करते हो. But now guys, अगर एक बार आप command prompt बंद कर दो, let I just close my command prompt, let me once again reload that, and let I just say okay Java test. Oh, it's a driver not found. और अभी तो मिल गया था भाई तुझे. So guys, ये temporary set हुआ. अगर आप permanently set करना चाहते हो, just open my computer and my computer पे right click करें, properties पे जाए. Properties पे आपको advanced system settings मिलेगा. Okay. एडवांस सिस्टम सेटिंग में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाइए. एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में यहाँ पे आपको कहीं पे जावा का पाथ मिलने वाला है.
ओके यहाँ पे आपको जावा पाथ मिलेगा. सो यू हैव टू जस्ट, अगर पाथ नाम का वेरिएबल नहीं है, हियर आई हैव अ वेरिएबल पाथ. इफ इट इज नॉट देयर, जस्ट क्रिएट वन न्यू वेरिएबल पाथ. और अगर अवेलेबल है देन आप इसमें एक नया वैल्यू ऐड कर दीजिए. ओके पूरे की पूरी चीज आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए. पर इसमें सेट क्लास पाथ वगैरह नहीं लिखना है. यू हैव टू स्टार्ट विद एक्चुअली सी ड्राइव, यूजर, स्टूडेंट, डेस्कटॉप एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड गाइस यू कैन जस्ट रिस्टार्ट योर कमांड प्रॉम्प्ट. नाउ इट्स अप. मैं यहाँ पे सेट नहीं कर रहा बिकॉज दूसरे स्टूडेंट को भी ये बग आना चाहिए, तो इस सिस्टम में प्रैक्टिकल करेगा. ओके सो दैट इज आल्सो द वे आप परमानेंटली अपने पाथ को सेट कर सकते हो. बट नाउ परमानेंट वाला नहीं करना, अभी हो सके तब तक टेम्पररी वाला रखना, बिकॉज एरर आएगी तो ही समझ में आएगा कैसे पाथ सेट करना है. सो फाइन, आई होप ये क्लियर है हाउ टू सेट द क्लास पाथ. हम लोग कहां तक पहुंच गए सर? अभी तो कनेक्शन किया है, अभी तो पहला स्टेप किया जावा का जेडीबीसी के साथ कनेक्शन किया. ओके नाउ जस्ट फायर द क्वेरी. अब कनेक्शन हो गया तो क्वेरी फायर कर दीजिए. दैट्स दैट. अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे क्वेरी फायर नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज अभी तो मैपर के साथ कनेक्शन हुआ ना. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज ड्राइवर लोड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज, सर मैं एक बार क्वेरी फायर कर भी दूं, जावा इसको क्वेरी भी प्रोवाइड करे, पर जेडीबीसी को क्या पता क्वेरी कहां रन करनी है. मतलब सर अगर मान लो मेरे पास MySQL इंस्टॉल्ड है वैम्प के थ्रू. आपको आई थिंक वैम्प का पता है. दैट्स एक्चुअली सर्वर, PHP सर्वर, जिसमें PHP MySQL नाम का एक हमारे पास प्रोग्राम है जो UI प्रोवाइड करता है डेटाबेस के साथ डील करने के लिए. सो मेरे पास एक्चुअली वैम्प इंस्टॉल्ड है. आई हैव MySQL आल्सो, आई हैव Oracle आल्सो. बट राइट नाउ Oracle का डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज गाइस हम लोग JDBC ड्राइवर MySQL वाले यूज कर चुके हैं. ओके सो MySQL का ही हम लोग यूज करने वाले हैं. So now the thing is, अगर आपने Oracle के ड्राइवर यूज किए, then you have to just go with Oracle software. Okay, तो मेरे पास MySQL मान लो 3-4 अलग-अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है. So now the requirement is, like जैसे मान लो यहाँ मेरे पास MySQL इंस्टॉल्ड है, MySQL मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो मुझे उसका सेटिंग देखना है. On which port it is actually loaded. So guys, actually उसके लिए आपको MySQL और वहां से आपको देखना है mysql.init, my.ini. तो इस फाइल में चेक करिए कौन से पोर्ट पे like configured है. It is configured with 3306. That is the first thing. It is configured with 3306. As we know, what is the meaning of port number? It is just used to identify the process. MySQL नाम का एक प्रोग्राम है, जावा का एक प्रोग्राम है, JDBC खुद एक प्रोग्राम है. तो जावा के साथ JDBC का कनेक्शन किया. इन शॉर्ट that's the integrated single program. Now जावा को, अदरवाइज मेरे प्रोग्राम को, लेट से टेस्ट नाम का क्लास है मेरा, उसको MySQL के साथ कम्युनिकेट करना है, देन मुझे MySQL का पोर्ट नंबर पता होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग. द पोर्ट नंबर इज 3306. सेकंड थिंग, ऑन व्हिच मशीन MySQL इज वर्किंग. सो MySQL इज वर्किंग ऑन अ सेम मशीन. MySQL मेरे सेम कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है. सो गाइस आई मस्ट नो द IP एड्रेस ऑफ इट. सो एक्चुअली अब जब मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, मैं क्वेरी फायर करूं, जब मान लो मैंने यहाँ से क्वेरी फायर किया जावा से JDBC, तो JDBC को पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे आगे जाके क्वेरी एग्जीक्यूट करना है. सो JDBC को सबसे पहले तो आपके डेटाबेस का लोकेशन पता होना चाहिए, देन पोर्ट नंबर पता होना चाहिए. ओके आपके डेटाबेस का लोकेशन पता होना चाहिए एंड पोर्ट नंबर पता होना चाहिए. सो व्हाट इज द लोकेशन? आपने कौन से सर्वर पे रखा हुआ है उसको, कौन से अपने पास लोकेशन पे है? दैट इज ऑन एक्चुअली लोकल होस्ट. Okay, that is on the same machine, so we can say that that is actually a local host. And what about the port number? So port number is actually 3306. Port number is actually 3306. So this information, guys, you have to provide. This information you have to provide to like to our JDBC. ये location आपको किसको provide करना पड़ेगा? You have to provide this location to JDBC driver. Okay, so how to provide these things? So for that we have another thing. Let I just say my server location. Otherwise, let I say host is equal to localhost, and like let I say integer. Otherwise, मैं localhost के साथ ऐसा लिख देता हूँ, localhost 3306. That's actually port number also. Localhost 3306. मैंने port number भी provide कर दिया. So that is the host address. Localhost और वहाँ पे कौन सी process 3306 पे जो भी launched है. 3306 पे जो भी प्रोसेस लॉन्च है, that process I require. That is actually MySQL process. So मैंने host address provide कर दिया. Now this information I have to provide to my driver. Okay, that information I have to provide to my driver. That's the thing. But driver is already loaded with Java. So आप Java को भी ये provide कर दोगे तो Java internally manage कर देगा.
डू नॉट वरी अबाउट इट. नाउ अनदर थिंग इज, ये प्रोवाइड करने के बाद ये पहला टास्क मेरा हो गया था, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. नाउ अनदर थिंग इज सर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर में तो बहुत सारे डेटाबेस होंगे. लेट अस से पहला मेरा कॉलेज का डेटाबेस था. I have a student database, I have company database, I have my family database. So I have lots of databases actually. I have lots of databases. So I have to provide a name of the database also. मुझे database का नाम भी provide करना पड़ेगा. So let I say string db name, एक अलग सा variable बना लेते. मैं इसको नाम दे देता हूँ specific db. Okay, in a similar way, जैसे आप PHP MyAdmin ओपन करोगे, लेट आई से लोकल होस्ट, उसने मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड पूछा. सो गाइस, अब जब JDBC भी एंट्री करेगा ना, तो उसको भी यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी. सो मेरे सिस्टम में यूजर नेम रूट है, पासवर्ड ब्लैंक है. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन व्हिच आई हैव टू प्रोवाइड द JDBC. ओके, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोकल होस्ट :3306 मींस व्हाट? दैट इज द एड्रेस ऑफ सर्वर. एंड उस एड्रेस पे लोकल होस्ट इन द सेंस कौन से आईपी एड्रेस पे आपका सर्वर लॉन्च्ड है, और 3306 इन द सेंस व्हाट, उस पे कौन सी प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन करना है. व्हाट अबाउट डीबी नेम, डेटाबेस पे पहुंचने के बाद, MySQL पे पहुंचने के बाद कौन सा डेटाबेस, कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है. व्हाट अबाउट रूट, व्हाट अबाउट पासवर्ड, सर डेटाबेस में एंट्री करना है, आपके MySQL में एंट्री करना है, देन वी रिक्वायर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड एक्चुअली. Then we required username and password. So this much of information we required to work with the DB. Fine. I hope यहाँ तक clear है. Now another thing is, sir, ये सब कुछ हो गया, but connection करके कौन देगा? That was once again a problem. Who will generate a connection? So guys, for connection we have a function that is actually get connection. हमारे पास उसके लिए एक function है that is a get connection. So here you have to pass first argument URL, second username, and third one is password. And this function will return the object of connection. But we know, like each and every function in Java are the member of class. So this is also the member of the class, and that is the static function. That is the static function. It is a public function. Static in the sense what? We can access that outside the class. Sorry, public means what? We can access that outside the class. Static means किसके through access करेंगे? We can access it using the class name. Okay, so यहाँ पे class name है is a member of driver manager. So यहाँ पे मुझे लिखना है java.sql.driver manager. Okay, so एक बार इसको चेक करें, java.sql.driver manager. So we need this connection. Okay, get connection function, not this one. We will just work with this. So get connection with string, and string. So first argument is nothing but a URL, in short the location of your server with the port number. Second one is a username, third one is a password. Second one is a username, third one is a password. It returns an connection object. So right now this is required actually. Okay, so we will just discuss about that also. Public and static in the sense outside the class access can be permission, and static means class can take access. So now let I just use this driver manager dot get connection function, और इसमें सबसे पहले मैं पास करूंगा host. And guys, यहाँ actually मुझे host की जगह URL पास करना है. What is the meaning of URL? URL means that will be the full name, like आपको यहाँ पूरा provide करना है. Okay, मतलब आपका host plus DB name, that will be the URL. Okay, then username, then password. आप यहाँ भी प्लस करके भी प्रोवाइड कर सकते थे, दो स्ट्रिंग वेरिएबल को कॉन्केट भी कर सकते थे, और मैंने पूरा पास कर दिया. That will return a connection object. So we required one more package, that is SQL. Okay, now one point was like I just forget to discuss one point. This language is important or not? So guys, that is not required because by default हर एक Java फाइल के अंदर java.language नाम का पैकेज इंपोर्टेड होता है. So do not worry. हर एक जावा फाइल के अंदर java.language नाम का पैकेज बाय डिफॉल्ट इंक्लूड होता है. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. ओके, नाउ दिस गाय आल्सो थ्रो सम एक्सेप्शन. ये भी कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है. व्हिच एक्सेप्शन? इट थ्रोज एक्चुअली एसक्यूएल एक्सेप्शन. सो आपको यहाँ एक और ऐड करना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट मी जस्ट कंपाइल दिस. मैंने लोड 1 के अंदर चेंजेस किया. नाउ इट मस्ट जनरेट एन एरर. रन टाइम पे एरर जनरेट करना चाहिए. कंपाइल टाइम पे कुछ नहीं कर रहा, रन टाइम पे करना चाहिए because we have some problem. What is the problem? Class not found. Okay, now इसके लिए तो आपको पता चल गया अब मुझे क्या करना है. 1 minute.
कॉपी किया था ना उसको यहाँ से ले लेते हैं। यस हियर इट इज। ओके नाउ दैट वाज नॉट द एरर, नाउ एरर इज सर ये क्या लिखा है आपने, मैं ये यूआरएल को नहीं जानता। सो गाइस यूआरएल लिखने से पहले एक और चीज देखते हैं। अगर मान लो मैंने google.com सर्च किया या यूआरएल ओपन किया, लेट आई जस्ट कॉपी दिस यूआरएल, मैंने google.com ही लिखा था बट नाउ मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट दिस https, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट अबाउट दिस https, ये https क्या है? What about this HTTPS? That is URL. Sorry, that is actually protocol. That is actually protocol. तो जब आप JDBC का MySQL के साथ कनेक्टिविटी करोगे ना तो आपको प्रोटोकॉल स्पेसिफाई करना पड़ता है। ओके सो व्हाट इज द प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज, आप JDBC पे थे ना, so JDBC :MySQL : Why मैंने डबल स्लैश क्यों लिखा? बिकॉज दिस इज द पैटर्न टू राइट डाउन द प्रोटोकॉल। ऐसा कुछ ही लिखा जाता है ना, प्रोटोकॉल का नाम कोलन एंड डबल स्लैश। व्हाट इज द प्रोटोकॉल? हम लोग एक्चुअली JDBC के पास थे, JDBC से मुझे MySQL पे जाना था, तो JDBC :MySQL : then double slash and then localhost. Now let me compile our program and let me run the program. So still it generates error, but now error किसकी है? सर डेटाबेस नहीं मिल रहा। Now that's fine, हमने डेटाबेस नहीं बनाया तो उसको नहीं मिलने वाला, that's fine। तो एक में डेटाबेस जो मेरा बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है उसको मैं यूज कर लेता हूँ। पहले let us open this, कोई भी डेटाबेस ले लेते हैं, जैसे MyDB। ओके तो डेटाबेस का नाम हम यहाँ से चेंज कर देते हैं and let me once again compile our program and run। Oh that's fine, this works। ओके सो हमने सिर्फ 2 स्टेप गाइस आज